Good evening, candidates. How are you doing? Today we are here for a webinar on data preparation visualization with the help of Microsoft Power BI. And my name is Prakash Kandpal, and I'm your trainer for data analytics here, right? So, guys, we have few members online, like we have Aditya, we have Ajay sir, as well as Shutosh, we have Chandra, Deep, Sakshi, and Sunny also. So Aditya, let's start with you. अपना एक इंट्रोडक्शन दे ब्रीफ हमें. आदित्य, आवाज आ रही है मेरी? एम ऑडिबल टू यू? Few people are joining us. Ajay sir, I am audible to you? Mr. Ajay? Yes, perfectly all right. You are audible. Okay, so you can start with your introduction first. Okay, let me start my. So I am Yeah. Ajay Kumar, and currently I am in Mumbai, and I Okay. am currently associated with one of the company in edutech field. Uh-huh. I have completed my BTech, MTech, and PhD in computer science, and looking for upcoming technology like data analytics and data science. That's great. That's great. Nice to see you again, Mr. Ajay. Yes, sir. Okay. Besides that, may I know about Sakshi yourself? Could you please? Hello sir, good evening. Yeah, Sakshi, अपना introduction दे सकते हैं आप हमें, एक brief introduction. So currently I'm working as an operations specialist in Hmm. Kingshander, which is a logistics company, and Okay. I'm in data analytics course, which is obviously taught by you, sir. Right. And I enrolled in this course so as to get more information about it and learn something new. Surely, sure. You are at right place right now. And what about Deep? Am I audible to you, Deep? अपना introduction देंगे आप हमें? Yes. Good evening, all. Myself, Deep. Actually, currently I'm working on Ericsson as an integration engineer. So Okay. thanks for the invitation, first of all, and yeah, best of luck. Okay, thank you. Thank you. And Ashutosh, आप अपना introduction देंगे एक brief हमें? Hi. Hello, sir. I am Ashutosh Tripathi. Now I am in the fourth year of engineering, and as I am a fresher and I am looking for jobs in this IT sector, so I am Okay. attending this course and training. Okay, Ashutosh, could you please elaborate in which trade you are doing your BTech engineering? I am in ECE. It's department. electronics or electronics plus electrical? Electronics and communication Oh, okay, engineering. electronics and communication. Fine. That's great. And Sunny, आप अपना introduction देंगे हमें एक brief introduction. Hello. Yes, Sunny. Hello. Good evening, sir. Very good evening. Sir, my name is Sunny. I am from Khatima. I have done BTech from MIT Moradabad and currently working in automobile company. Okay, Sunny, fine. Karthik, am I audible to you? कार्तिक, ऑडियो मिल रहा है मेरा आपको? यस सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून कार्तिक, कुछ बताएंगे अपने बारे में, क्या करते हैं अभी आप? यस
Yes, sir. I am Karthik, sir. I have just passed class 12 this year. Oh, that's great. You are too young. Yes, sir. Thank you. Yeah. Okay. Tell me more about yourself. ओके, कार्तिक ने अभी 12th ही किया है। बहुत अच्छी बात है, काफी अवेयर है कार्तिक आप करियर को लेके। सो गाइज वी गोना डिस्कस दीज थिंग्स। और जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल रहेगा उसको हम हाइब्रिड रखेंगे, यानी कोशिश करेंगे इसे इंग्लिश में रखें हम लोग, ठीक है, सो दैट चीजों को और इजीली हम लोग समझ पाए, ठीक है। और मैं अपने बारे में आपको बता चुका हूँ। अगेन वंस अगेन कुछ कैंडिडेट्स ने लेट में ज्वाइन किया है। माय नेम इज प्रकाश कांडवा एंड आई एम योर ट्रेनर फॉर डेटा एनालिटिक्स एंड फ्रॉम बिलिका सर्विसेज। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट ब्रांडेड टूल है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है, जो कि डेटा एनालाइजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों को आज जो है ये डिस्कशन हमने रखा है, सो दैट कई यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट ऐसे हैं जो करियर में अभी मूविंग फेज में है, उन लोगों को इससे काफी हेल्प मिलने वाली है। यू विल कम टू अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्या चीजें चल रही हैं मार्केट में, और आगे फ्यूचर में जो है, देखिए फ्यूचर ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हम लोग टाइम के साथ चलें, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करें, स्किल्स बिल्ड करें। तो वही चीजें आप हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, द इम्पोर्टेंट थिंग इज द टर्म कॉल्ड डेटा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा आज की डेट में, देखिए। और अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों ने अक्सर सुना होगा डेटा को भी अब डेटा ना कह के बिग डेटा कहा जाता है, राइट। सो बेसिकली वी आर प्रोड्यूसिंग बिग डेटा, राइट। जो हो क्या रहा है कि वी आर गोइंग ऑन इंटरनेट, वी आर परफॉर्मिंग मैनी ट्रांजेक्शंस, ठीक है। हम लोग जो भी आजकल चीजें कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, मेजर पार्ट अगर आप सुबह से अपना डेली रूटीन देखें तो सुबह से शाम तक अगर आप जज करेंगे खुद को, तो आप लोग वेब पे ही दुनिया भर के ट्रांजेक्शन जो है क्या कर लेते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं। एंड इसका रिजल्ट होता है कि डेटा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये डेटा अलग अलग कंपनीज में जा रहा है, यानी कि लेट्स से यू आर डूइंग सम कोई इंक्वायरी आप वेब में कर रहे हैं, तो वो डेटा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलिवेंट है। अगर आप किसी पोर्टल पे ई रिटेल शॉप पे जाके शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो डेटा उसके लिए रिटेल बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो उसके बिजनेस से रिलेटेड डेटा है, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस डेटा को पिक करते हैं, वी विल गेट दिस डेटा, और उसे कन्वर्ट करते हैं मीनिंगफुल डेटा में, यानी कि इंफॉर्मेशन में। सो डेटा एनालिटिक्स जो होता है, एग्जैक्टली दिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन डेटा, ठीक है ना। डेटा को एग्जामिन हम लोग करते हैं, और उसके अंदर जो हिडन इंफॉर्मेशन होती हैं, लाइक ट्रेंड्स होते हैं, कंक्लूजन्स हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, वो सब हम जो है रेस करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। सो डेटा इज नथिंग, बेसिकली दीज आर रॉ फैक्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। लेट्स से मैंने कुछ फिगर्स आपके सामने रख दिए, तो आप इसे डेटा कह सकते हैं, बट इसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलना, दैट इज द प्रोसेस। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेटा एनालिटिक्स, राइट। सो गाइज, वी यूजेस इसमें डेटा एनालिटिक्स का जो प्रोसेस है, बेसिकली इसे हम खुद से नहीं करते हैं। बेसिकली द थिंग इज दैट इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, वी हैव मैनी टूल्स, और वो टूल्स हम लोग उसमें से आज जो हमारा फोकस रहने वाला है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पे रहने वाला है, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे करके चीजों को इवॉल्व किया जाता है, कैसे हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं। और ये एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ, बेसिकली किस तरह से चीजें यहाँ पे काम करती हैं। तो ये जो डेटा का कन्वर्जन है इंफॉर्मेशन की तरफ, ये काम करने के लिए जो होते हैं, वो उन्हीं बंदों को जो है डेटा एनालिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। सो वी आर प्रिपेयरिंग हियर फॉर डीए, बेसिकली डेटा एनालिस्ट इसे कहा जाता है, द डेजिग्नेशन नेम इज। और इस समय हाई डिमांड है इसकी। अगर आप इंडस्ट्री लेवल की बात करें तो इस समय काफी डिमांडिंग ये जो है ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। और फ्यूचर स्कोप भी बहुत अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अब डेटा को बिग डेटा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है गाइस। सो जैसे मैंने बताया, आज से अगर कुछ साल पहले की बात करें, जैसे हमारे साथ अजय सर है, सीनियर है काफी, तो कुछ साल पहले इंटरनेट ट्रांजेक्शंस बहुत कम होते थे अजय सर, और इन सब ट्रांजेक्शन्स के लिए बेसिकली हमारे पास एक मीडियम होता था, साइबर कैफेज। तो जो भी काम हमें स्टफ परफॉर्म करना होता था, उसके लिए डेडिकेटली साइबर कैफेज जाना होता था, और वहां जाके हम लोग
परफॉर्म करते थे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, लाइक एयर टिकट बुकिंग और रेलवे टिकट बुकिंग। फॉर नाउ, आज की अगर हम लोग बात करें तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज आप सबके पास इंटरनेट एक्सेसिबल है, हम लोग घर बैठे बैठे ही कई सारे ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। यही रीजन है कि डेटा का साइज बिग होता जा रहा है, राइट। एंड द सेकेंड फेज इसमें ये आ जाता है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। 135-140 करोड़ तो हम ही लोग हैं इंडियंस, ठीक है। और आप खुद सोच लीजिए, इतने जो अगर पॉपुलेशन का आप अंदाजा लगाए कि कितना डेटा ये जनरेट करते होंगे, तो इससे पता चलता है, लाइक इफ यू सी, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल है आधार का ही, तो गवर्नमेंट के पास जैसे हमारे पास आधार का डेटा होता है हमारे, सो यू कैन सी दैट, आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतने सारे जो क्या कहेंगे आप, पॉपुलेशन है, उन पर्सन्स का उनके पास जो है पूरा इंटायर डेटा सेट जो है रिकॉर्ड में होता है, लाइक बायोमेट्रिक्स, नेम, एड्रेसेस, मोबाइल नंबर एंड सो ऑन। तो ये एक, इससे पता चलता है कि डेटा का साइज कैसे बिग होता जा रहा है, राइट। सो दीज आर द स्टफ्स। इससे पता चलता है कि करियर में इसमें काफी पोटेंशियल है। डे बाय डे डेटा का साइज गाइस बड़ा होता जाएगा। उसके पीछे रीजन है कि रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग काफी ज्यादा जो है टेकी हो गए हैं इस समय की अगर हम बात करें, ठीक है। जो मैंने बताया कि कुछ काम ऐसे होते थे, कुछ स्टफ ऐसे होते थे जो इंटरनेट साइबर कैफेज में जाके हम परफॉर्म करते थे, आज की डेट में हम लोग खुद से उन्हें परफॉर्म करते हैं अपने मोबाइल फोन, अपने सेलफोन, स्मार्टफोन्स के जरिए, ठीक है। तो यही चीजें हैं जो डेटा का साइज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और इसी के रीजन की वजह से, ये जो बिग डेटा डेटा है, इसी के रीजन की वजह से आप लोग पाएंगे कि आज की डेट में जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो डेटा ओरिएंटेड ज्यादा है। इफ यू विल डिस्कस अबाउट द बिग डेटा, हडूप, एज वेल एज वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज है डेटा ओरिएंटेड ज्यादा है, ठीक है। तो डेटा का एक सिग्निफिकेंस है गाइस, और किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एसेट होता है। और बेसिकली इन्हीं डेटा को एनालाइज करके, इसी डेटा से, इन्हीं डेटा सेट्स को एनालाइज करके बेसिकली जो बिजनेस मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फॉलो करता है या उसे फॉलो करवाता है, ठीक है। कोई भी बड़ा बिजनेस ऐसे ही नहीं चल रहा है, बिना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे लर्न करते हैं कि बेसिकली वो एटीट्यूड हमारे अंदर कैसे आए। जब आप कोर्स करते हैं डेटा एनालिस्ट का, तो ये चीजें आपके अंदर डेवलप की जाती है, ये स्किल डेवलप किए जाते हैं कि वो एटीट्यूड, वो अप्रोच कैसे आपके अंदर आए डेटा एनालिस्ट वाला। बिकॉज टूल्स तो आप सीख ही जाएंगे, ठीक है। द पॉइंट इज कि वो एक एटीट्यूड, वो एटमोस्फेयर हम लोग क्रिएट करते हैं सो दैट आपके अंदर वो चीज आए, वो अप्रोच आए डेटा एनालिस्ट वाला। कंपनीज भी इसमें यही प्रेफर करती है गाइस, आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, डेटा रिजॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। और इस तरह का अगर एटीट्यूड आपका कैंडिडेट्स का होता है तो डेफिनेटली यू विल गेट हायर्ड इन बेटर कंपनीज, ठीक है ना। आप अच्छी कंपनीज में हायर होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये जो चीज मैं अभी डिस्कस कर रहा था बेसिकली वही आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है गाइस। सो डेटा एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा एंड सेट्स एंड फाइंडिंग देयर ट्रेंड्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन। सो बेसिकली डेटा एनालाइज करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड्स निकालते हैं बेसिकली। लेट्स से मैं आपको 5 ईयर सेल्स का डेटा दे दूं, किसी कॉर्पोरेट का, किसी ई रिटेल का, तो यू कैन इजीली जज, आप इजीली जज कर सकते हैं कि भाई इस साल कितनी सेल्स होगी। बेसिकली पिछले 5 ईयर्स का है, आप लोग ग्रोथ देखते हुए और आप एक प्रिडिक्शन, जनरल प्रिडिक्शन जो है जनरेट कर सकते हैं। यही काम हमारा होता है विद द हेल्प ऑफ BI टूल्स, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स की हेल्प से हम लोग ये काम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी दैट, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, लाइक जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा होता है बेसिकली वो रियल टाइम हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, ठीक है। हिस्टोरिकल हिस्ट्री बेस्ड, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर्ड जो है फॉर्मेट ना हो, वो प्रॉपर मैनर कलेक्टेड ना हो, ठीक है। तो वो हमें कैसे ठीक करना होता है वो चीजें भी हम सीखेंगे। क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है, डेटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है, नॉन क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अल्टीमेटली जो काम करना है, हमें आइडेंटिफाई करने हैं पैटर्न्स, हमें आइडेंटिफाई करने हैं ट्रेंड्स, और इंसाइट्स निकाल के लाने हैं डेटा सेट से, ठीक है ना। ये हमारा टास्क होता है। डेटा एनालिस्ट इसी तरह पे, इसी लेवल पे काम करते हैं। एज पर करियर चॉइस, अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं इसमें, सो मैं पिछले काफी सालों से जो है डेटा एनालिटिक्स पढ़ा रहा हूँ, एंड बिफोर दैट आई वाज आल्सो अ टेक गाय, मैं नेटवर्क इंजीनियर प्रीवियसली रहा हूँ। द पॉइंट इज बेसिकली, यहाँ पे देखिए, अगर पोटेंशियल की बात करें तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल इस फील्ड में है। और एक सबसे अच्छी चीज इस फील्ड के बारे में यह है कि इट्स नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे कोई एजुकेशन को लेके कोई बाउंडेशन नहीं है। लाइक इफ यू बिलोंग्स टू
आर्ट साइड, यू बिलोंग्स टू कॉमर्स साइड, आपने देखा होगा करियर में इन चीजों को लेके बड़ी दिक्कतें होती है, ठीक है, कि भाई बीटेक नहीं कर सकते आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आप आर्ट्स के हैं। यहाँ पे इस फील्ड में इस चीज को लेके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है गाइस। किसी भी आप कहीं भी किसी भी जो है एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हो, आप लोग इस करियर को ऑप्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब है। जैसे कि अभी हमारे साथ कार्तिक खत्री है, ही इज अ यंगस्टर, काफी यंग है सब में, अभी 12th ही उन्होंने किया है और एक अवेयरनेस उनके अंदर है, सो दैट उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पॉइंट यही है कि हमें समझना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस टाइम के साथ चलना, अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में यही है बेसिकली, लाइक इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आज की डेट की यही डिमांड है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होगा। जो भी रिवॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी में होते हैं हमें ऑप्ट करना होगा, हर दिन नई चीजें आ रही है, ठीक है ना, तो वो चीजें हमें लर्न करके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो यही चीज है डेटा एनालिटिक्स। ओवरऑल ये हो गया कि हमें डेटा सेट मिलता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, हमें उसे एनालाइज करना होता है और आउटकम्स जनरेट करने होते हैं, ठीक है। एंड सी वी कैन सी एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं ई रिटेल के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं तो ई रिटेल चेन बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में। आप लोग सभी लोग Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम एंड सो ऑन, बहुत सारे ई रिटेल वेबसाइट्स है जहां से आप लोग शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए इतने बड़े बड़े बिजनेसेस ऐसे ही नहीं चल रहे हैं, बिना डेटा एनालिटिक्स के ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो डेटा एनालिटिक्स से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, कुछ मेजर पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट नहीं है, ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो कि एक ई रिटेल बिजनेस जो है डेटा एनालाइज करके मॉनिटर करता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सो हियर यू कैन सी दैट लाइक ट्रैकिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है यहाँ पे गाइस स्टॉक इन हैंड्स, ठीक है। तो स्टॉक इन हैंड का क्या मतलब होता है यहाँ पे, बेसिकली ऑनलाइन जितने भी रिटेल शॉप्स हैं वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कई सारे प्रोडक्ट एक साथ बिक सकते हैं, इजंट इट। सो होता क्या है कि वो इन्वेंट्री को रेगुलरली मॉनिटर कर रहे होते हैं। बेसिकली जैसे Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, इनके अपने वेयर हाउसेस होते हैं जहां इन्होंने जो भी आइटम्स होते हैं वो कलेक्ट करके रखे होते हैं। अगर वो इन्वेंट्री को नहीं मॉनिटर करेंगे, उन्हें अगर पता नहीं होगा प्रोडक्ट कब खत्म होने वाला है, कितने दिन में खत्म होने वाला है, तो उसको वो रीफिल कैसे करेंगे, राइट। तो उन्हें पहले से अवेयरनेस होती है, डेटा एनालाइज करके उन्हें इतना प्रिडिक्शन होता है कि कितने दिन का स्टॉक उनके पास है, कब ये खत्म होने वाला है, सो दैट वो उससे पहले पहले उसे क्या कर लें, रिफिल कर लें, या फिर आइटम को डिसकंटिन्यू कर दें, आउट ऑफ स्टॉक मार्क करके, ठीक है। यही चीजें हैं जो मॉनिटर करी जाती हैं सबसे पहले ई रिटेल में, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे रेस किया गाइस, दैट इज आइडेंटिफाइंग परचेज हैबिट्स, ठीक है। सो द थिंग इज दैट ये सबका एक एक्सपीरियंस होगा कि हम क्या करते हैं कि हमारा एक पैटर्न होता है खरीदने का। हम मतलब किसी का कहीं इंटरेस्ट है, किसी का कहीं, लाइक Amazon पे लेट्स से मैं बुक्स खरीदना पसंद करता हूँ, कोई XYZ पर्सन है जो एसेसरीज का परचेज करना पसंद करता है, एज वेल एज कोई दूसरा पर्सन है जो क्लोथिंग खरीदना पसंद करता है। बेसिकली हमारी ऑर्डर हिस्ट्री उनके पास कलेक्टेड होती है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। तो वो ऑर्डर हिस्ट्री को जज करके बेसिकली साक्षी हमारे क्या करते हैं, हमारी जो परचेज हैबिट्स होती है उनको जज करते हैं बेसिकली, कि भाई हमारी परचेज हैबिट्स क्या है। ऐसा क्यों किया जा रहा है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उन्हें पता होता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या मतलब क्या चीजें देखना वो पसंद करता है, ठीक है। इसमें थर्ड पॉइंट मैंने रेज किया है, दैट इज डिटेक्टिंग एंड यूजर ट्रेंड्स। तो एंड यूजर ट्रेंड्स का मतलब ये है कि ओकेजनली या कई बार सर्कमस्टांस, और इंडिया की बात करें तो वी हैव अ डाइवर्स पॉपुलेशन और डाइवर्स रीजन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो एंड यूजर ट्रेंड्स यानी अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग त्योहारों में, फेस्टिव सीजन्स में अलग अलग चीजें ट्रेंड कर रही होती है। इफ यू विल टॉक अबाउट द कोविड, तो कोविड में भी वो भी एक ट्रेंड था गाइस। जब भी ऐप खोलते थे तो आप लोगों ने देखा होगा सैनिटाइजर और मास्क, पीपीई किट के अलावा कुछ और दिखता भी नहीं था, ठीक है। बेसिकली वो ट्रेंड्स बेसिस पे आपको दिखाया जाता था, क्योंकि उस समय वही चीजें ट्रेंड कर रही थी, ठीक है। तो यही चीज होती है बेसिकली ऑर्डर, जब वो ग्लोबली पूरा ऑर्डर देखते होंगे, ऑर्डर हिस्ट्री जब जज की जाती होगी, तो उससे पता चलता होगा कि क्या चीजें ट्रेंड कर रही है आजकल। लाइक फेस्टिव सीजन्स में ऑब्वियसली आप लोग एथनिक खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो जज की जाती है। तो यही हुआ एंड यूजर ट्रेंड्स, जो कि सर्कमस्टांस बेसिस पे अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं।
और जैसे मैंने बताया, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, लेट्स से अगर आप नॉर्थ रीजन की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा, अगर कोल्ड होता है तो बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, अगर समर्स हैं तो बहुत ज्यादा वार्म होते हैं। लेकिन अगर आप यही महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई पुणे की बात करें, तो वहाँ जो है समर्स और न्यूट्रल होता है वहाँ का वेदर, राइट। तो ये चीजें डाइवर्स होती हैं, और उसी वजह से जो है आपको उस तरह के सजेशंस दिए जाते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज पैटर्न्स। बेसिकली पैटर्न्स का मतलब यहाँ पे ये है बेसिकली कार्तिक, कि जब आप खरीदते हैं, कोई परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो आपका खरीदने का एक तरीका होता है। लेट्स से मैं मुझे सैलरी मिलता है, तो मैं उसका कुछ परसेंट जो है क्लोथिंग में स्पेंड करता हूँ, कुछ परसेंट मैं बुक्स में स्पेंड करता हूँ, और कुछ एसेसरीज में। तो उनके पास वो वो बेसिकली शेयरिंग निकालते हैं मेरे टोटल एक्सपेंस की, कि कितना परसेंट मैं किस सेक्शन पे स्पेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसी से रेज होता है बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दैट इज रिकमेंडिंग परचेज। रिकमेंडिंग परचेज क्या है यहाँ पे गाइस? सो होता क्या है कि आप लोग जब भी ऐप खोलते हैं, आपको कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस दे रहा होता है पर्टिकुलर ऐप। ठीक है, ये ऊपर के 3 ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए, 3 पॉइंट्स जो मैंने रेज किए हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपको रिकमेंड की जाती है परचेज। यानी कि आपका एक तो सबसे पहले परचेज हैबिट देखा जाता है, आप क्या लेना पसंद करते हैं। फिर देखा जाता है एंड यूजर ट्रेंड्स, यानी कि क्या ट्रेंड चल रहा है। एंड देन पैटर्न्स, आपका बिहेवियर क्या है खरीदने का, शॉपिंग का क्या बिहेवियर है। इन तीनों पॉइंट्स को कम्युलेट करके और फिर आपको रिकमेंडेशंस की जाती है। इफ यू हैव नोटिस दीप, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, तो किसी ऐप में अगर आप कोई प्रोडक्ट देख के बाहर निकल जाते हैं और दोबारा लौट के आते हैं, तो आपको वही प्रोडक्ट दिखाई देता है, राइट। और वही प्रोडक्ट दिखाया जाता है और उससे सिमिलर और भी, क्योंकि उन्हें पता होता है आपने इस प्रोडक्ट को स्क्रॉल किया है। ठीक है, तो वो आपको रिकमेंडेशन उसी तरह से दी जाती है। ठीक है, एज वेल एज रिकमेंडेशन, ये उस ऐप तक तो ठीक था, लेकिन कई बार ऐसा आप लोगों ने पाया होगा कि आप किसी रिमोट ऐप पे जाते हैं, यानी किसी दूसरी ऐप पे जाते हैं, वहां पे भी एडवर्टीजमेंट में आपको वही एलिमेंट दिखाई दे रहा होता है जो आपने थोड़ा देर पहले अमेजन पे जो है ब्राउज किया होता है। ठीक है, ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूजिंग डेटा एनालिटिक्स। बिना एनालिटिक्स किए हुए, बिना एनालिसिस किए हुए ये चीजें पॉसिबल नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये रिकमेंडिंग परचेज इन्हीं 3 पॉइंट से बेसिस है बेसिकली, कि परचेज हैबिट आपकी जज की जा रही है, आपका ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है एंड यूजर्स में, वो जज किया जा रहा है, एज वेल एज पैटर्न्स ऑल्सो, और उसी बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस दी जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। देन 6 पॉइंट में मैंने रेस किया है गाइस, प्राइस ऑप्टिमाइजेशन। प्राइस ऑप्टिमाइजेशन इज अ काइंड ऑफ थिंग, देखिए ये थोड़ा सा बिजनेस मैनेजमेंट और प्राइस मैनेजमेंट से, कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है थोड़ा सा। देखिए सिंपल है, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, अगर मैं जनरल मैनर में लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो किसी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज्यादा है तो गाइस वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। प्रोडक्शन लेट से कम है और डिमांड ज्यादा है, तो आपने पाया होगा वो थोड़ा महंगा मिलता है आइटम। लेकिन वही आइटम जब कुछ समय बाद आपने देखा होगा, जब बिकना बंद हो जाता है, उसकी सेलिंग ड्रॉप हो जाती है, तो आपने पाया होगा उसका प्राइस भी कम हो जाता है। इसी प्रोसेस को प्राइस ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डिमांड, प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखा जाए, इसी को प्राइस ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। यानी कभी उसे कम भी किया जाता है और कभी डिमांड में होने पर ज्यादा भी। ठीक है, तो इसके लिए बल्कि आपको बताऊं तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट लेवल का बंदा होता है जिसे कॉस्ट मैनेजर कहा जाता है, जिसका काम ही यही होता है कि वो हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के बिजनेस प्रोसेस को पहुंचाता है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग एंड स्टॉपिंग फ्रॉड्स। सी, आजकल जब से ये ऑनलाइन ट्रेंड्स बढ़े हैं, ट्रांजेक्शन्स बढ़े हैं, आप लोग नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ यानी कि मनी ट्रांजेक्शन, या जैसे मॉनेटरी कहेंगे, मॉनेटरी ज्यादा यूज हो रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में। तो गाइज ये एक ड्रॉबैक, एक लूप होल आया है कि फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ऑनलाइन। ठीक है, ई रिटेल में भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो बेसिकली फ्रॉड्स को जज करने के लिए हर एक, बेसिकली जितने भी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म होते हैं दिन भर में या हफ्ते भर में, हर एक ट्रांजेक्शन को क्वाइटली, बहुत ही क्लोजली बार्ज किया जाता है। और इफ दे फाउंड कि पर्टिकुलर पर्सन जो है फ्रॉड कर रहा है, या पर्टिकुलर पर्सन जो है इन्वॉल्व है इन चीजों में, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करके रेड फ्लैग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए डेडिकेटली एक पर्सन होता है और उसे जो है फ्रॉड एनालिस्ट कहा जाता है गाइस। ठीक है ना, एक डेडिकेटेड पर्सन होता है जिसे कहा ही फ्रॉड एनालिस्ट जाता है। तो उसका काम ही यही होता है कि वो हर एक ट्रांजेक्शन से बेसिकली फ्रॉड्स को देख रहा होता है, फ्रॉड्स को मॉनिटर कर रहा है। यानी कि उसका और कुछ काम नहीं है, वो केवल जज कर रहा है क्या, केवल फ्रॉड। उसको कहा जाता है फ्रॉड एनालिस्ट। ठीक है,
तो हर एक ट्रांजेक्शन में डिग इन करके उसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन फ्लैग करता है, ठीक है। सो ये इस तरह की प्रोफाइल्स होती है, यानी कि डेटा एनालिस्ट तो एक कॉमन प्रोफाइल हो गया, बट द पॉइंट इज कि जब आप देखेंगे इसे, इफ यू सी इन अ लार्ज स्केल, तो यहाँ पे अलग अलग लाइक एक डोमेन वाइज भी जो है एनालिस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लाइक फ्रॉड देखने वाला फ्रॉड एनालिस्ट है, फाइनेंस से रिलेटेड जो देख रहा है वो फाइनेंस एनालिस्ट है, ठीक है, कोई मैनेजमेंट एनालिस्ट है। तो इस तरह के कई सारी चीजें होती है, यानी कि ये एज पर डोमेन वेरी करता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया था कि ई रिटेल में किस तरह से इसका यूज हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, करेक्ट। सी गाइस, किसी का कोई क्वेरी होता है तो वो पूछ सकता है मुझे इंटरप्ट करके, रेज योर हैंड अप एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग, राइट। सो गाइस, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है स्लाइड में कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन जो अभी तक मैंने आपको समझाया है, द एंटायर थिंग इज दैट डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज मोस्ट स्ट्रेटेजिक बिजनेस एसेट, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। लाइक वी आर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हम लोग एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हमारे लिए हमारे स्टूडेंट्स का डेटा, हमारे एम्प्लॉयज का डेटा, हमारे प्रोस्पेक्ट्स का डेटा, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारे लिए जो है क्या है, एक बिजनेस एसेट है गाइस। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डेटा, उसकी कस्टमर का डेटा, एम्प्लॉयज का डेटा, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, हमें मिलता है गाइस डिफरेंट सोर्सेज से डेटा सेट, हमें उसे करना होता है एनालाइज, यानी कि प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ बीआई टूल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स, और फाइनली हम लोग इस तरह का आउटकम, इस तरह के डैशबोर्ड्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये डैशबोर्ड्स बन रहे होते हैं। अब देखिए इन फिगर्स, ये चार्ट्स को देख के चीजें बहुत आसान हो जाती है। सो यू कैन सी दैट ये हाईएस्ट पॉइंट है, यानी ये प्रॉफिट फिगर्स हैं। ये जो नीचे जा रहे हैं सारे के सारे क्या है, लॉस फिगर्स हैं। आप देख के इसे बता सकते हैं, इट्स क्वाइट इजी टू जज। यानी कि डेटा को जब आप विजुअलाइज करते हैं, ये हायर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, ये लोअर परफॉर्मर हो गया, ये हाई परफॉर्मर हो गया। ये सारे हायर परफॉर्मर्स हैं, ये जो बॉटम जा रहा है ये लॉस वाला फिगर है, यानी कि ये एलिमेंट में हमें ध्यान देने की जरूरत है। सो यू कैन सी दैट डेटा विजुअलाइज करके चीजें काफी आसान हो जाती है, ठीक है। अब समहाउ कभी कोई पूछ लेता है आपको, या आपने कईयों से सुना होगा, डेटा विजुअलाइजेशन को केवल ये कह के खत्म कर दिया जाता है कि चार्ट्स और ग्राफ बनाना, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। बट गाइस, डेटा विजुअलाइजेशन ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर डेटा एनालाइजेशन की हम लोग बात करें तो गाइस यहाँ पे होता एग्जैक्टली ये है कि डेटा विजुअलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ डेटा एनालाइजेशन। जो हम डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं ये एज अ मेथड ऑफ डेटा एनालाइजेशन, डेटा को एनालाइज करने के लिए हमने विजुअलाइज किया है, दिस इज द ओनली रीजन। समझ रहे हैं आप लोग। सो यही एकमात्र जो है ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे। तो डेटा विजुअलाइजेशन एक मेथड है डेटा एनालाइजेशन का, जिसे हम लोग फॉलो करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ बीआई टूल्स हम इस तरह के विजुअल्स क्रिएट करते हैं, सो दैट हमारे लिए डेटा एनालाइज करना क्या हो, आसान हो, ठीक है। यही चीज है। अच्छा, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है गाइस, लाइक जो इंडिया, जो ह्यूमंस का ब्रेन होता है बेसिकली, वो इस तरह से डेवलप होता है कि वो ग्राफिक्स, इमेजेस और लाइक वीडियोस, इनको इजीली अच्छे से ग्रैप कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, ठीक है। दिस इज द ओनली रीजन कि हम लोग विजुअलाइजेशन मेथड प्रेफर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इमेजेस को, पिक्चर्स को भूलते नहीं आसानी से, जल्दी से जनरलाइज कर लेते हैं, इजीली एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ओनली रीजंस कि डेटा विजुअलाइजेशन एज अ डेटा एनालाइजेशन मेथड प्रेफर किया जाता है, ठीक है, ये चीज। सो गाइस, जो मेजर फोकस आज का हमारा रहने वाला है, दैट इज द टूल नेम इज माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ये इस समय हाई डिमांड टूल है, और आप जब भी जॉब देखेंगे डेटा एनालिस्ट का, कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अगर आप सर्च करें डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए, तो यू विल फाइंड कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई आपको वहां पे दिखेगा ही दिखेगा। दिस इज द पॉपुलर टूल, दिस इज द पॉपुलर बीआई टूल। और एक पॉपुलरिटी का रीजन ये है इसकी ब्रांडिंग। सो एवरीबडी नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, सबको आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट का एक रेपुटेशन है गाइस, एंड उसका अगर बीआई टूल है तो डेफिनेटली ये औरों से अलग होगा, बेटर होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है टैबलू, एक टूल है दूसरा गाइस जो सबसे ज्यादा यूज होता है वर्ल्ड वाइड। एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। अगर हम इंडियन एटमॉस्फेयर की बात करें, इंडिया में क्या प्रिफर्ड है, तो मैं आपको बता दूं, इंडियंस जो ज्यादातर प्रेफर करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई प्रेफर करते हैं, ठीक है। हमारा ज्यादा ध्यान, क्योंकि बेसिकली इसका रीजन है कॉर्पोरेट में क्यों ज्यादा यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, बिकॉज ऑफ कंपैटिबिलिटी। बिकॉज जो हम लोग विंडोज प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट का होता है,
तो कंपैटिबिलिटी रीजन से ऐसा माना जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ज्यादा रिच है, ठीक है। तो इसीलिए जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई आज का हमारा जो टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना है वो यही रहने वाला है, ठीक है। सो उससे पहले एक टर्म आई है निकल के, बिजनेस इंटेलिजेंस। बेसिकली जब मैंने आपको कहा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई तो इट इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, तो व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस? फर्स्ट वी हैव टू नो कि एग्जैक्टली बिजनेस इंटेलिजेंस होता क्या है गाइस। सो मूव फॉरवर्ड। सो बिजनेस इंटेलिजेंस नथिंग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस होता है, ये टर्म का मतलब ही यही है कि रॉ डेटा को कन्वर्ट करना हमें किसमें है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। यही वही प्रोसेस है जो मैंने आपको डेटा एनालिटिक्स में अभी थोड़ा देर पहले बताया था बेसिकली, ठीक है ना। अ सेट ऑफ प्रोसेस, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी दैट ड्राइव्स प्रॉफिटेबल बिजनेस एक्शंस। बेसिकली कोई भी बिजनेस जो अपने डिसीजन लेता है, यानी कि जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है गाइस। कोई भी हवा में डिसीजन नहीं ले लेता। इवन आप छोड़िए प्राइवेट सेक्टर को, छोड़ देते हैं, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने अक्सर पाया होगा कि किसी XYZ स्कीम के लिए गवर्नमेंट जो है 1000 करोड़ का जो है बजट सैंक्शन कर देती है। एक बात आपको भी जान लेनी चाहिए, ये भी बिना डेटा एनालाइज किए हुए नहीं होता। अगर गवर्नमेंट किसी स्कीम में पैसा दे रही है तो उसके लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वहां पे वो भी बैठ के डेटा को क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। यानी आप ऐसा मत सोचिए केवल प्राइवेट सेक्टर में इसका यूज है, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका बहुत स्कोप है और आगे चल के डेफिनेटली ये बढ़ने वाला है, ठीक है। तो डेटा को एनालाइज करना, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीआई का मतलब यहाँ पे यही है गाइस कि डेटा को, रॉ डेटा को कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ बीआई टूल्स। बेसिकली बीआई टूल्स में एक एडवांटेज ये होता है कि वहां पे जो उसके फीचर्स होते हैं, या जो पैटर्न या प्रोसेस या एड ऑन टूल्स जो वहां पे दिए हुए होते हैं, वो बिजनेस इंटेलिजेंस ओरिएंटेड होते हैं, यानी हमारे काम को आसान करने वाले होते हैं। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हो गया आपका, या फिर टैबलो हो गया, उन्हें बीआई टूल इसलिए कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल बात ये निकल के आती है कि रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। उसको हमें यानी कि स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। आगे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, लाइक इट्स मेथड ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब यह है कलेक्टिंग या कॉलिंग ऑफ डेटा, उसको स्टोर करना है और साथ ही साथ एनालाइज करना है। एंड आगे मैंने यही मेंशन किया है, सो दैट कि बिजनेस ऑपरेशंस को क्या किया जा सके, ऑप्टिमाइज किया जा सके, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जा सके। सो इसी चीज के लिए जो है बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज होता है, ठीक है। तो गाइज ये जैसा मैंने बताया था, मोस्ट स्ट्रेटेजिक थिंग होती है डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर अ बिजनेस। सो यू कैन सी दैट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। जो भी बिजनेस मैनेजमेंट होता है बेसिकली बिना डेटा एनालाइजेशन के वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। एंड डेटा एनालिस्ट एक सबसे छोटा डेजिग्नेशन होता है, आपको बता दूं मैं, डेटा फील्ड में अगर आप मुझसे पूछें तो ये सबसे छोटा डेटा एनालिस्ट एक सबसे छोटा डेजिग्नेशन है। बट दैट पर्सन, उस पर्सन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, वो जो भी रिकमेंडेशंस देता है बेसिकली उसको कंसीडर किया जाता है, बिकॉज डेटा एनालिस्ट डेटा को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है, बहुत क्लोजली उसने उसे एनालाइज किया होता है, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस। ओके, निहारिका समझ में आ रहा है आपको? ओके, ऑडियो नहीं आ रहा है आपका? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। गाइस किसी की भी कोई क्वेरी है आप रेज हैंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको केवल यहाँ पे सुनना नहीं है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम। सो इसको ऐसे मत लीजिए कि इट्स अ काइंड ऑफ क्लास, इट्स अ डिस्कशन पॉइंट। बेसिकली ये एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे सुनना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ठीक है। ओके गाइस, सो आगे मूव करते हैं। एंड बीआई टूल्स के बारे में मेरे ख्याल से इतना बहुत है। अब हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की तरफ। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि बेसिकली बीआई, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर्ड है, ठीक है। एंड इसका जो बेसिकली होता है, बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो कि डेटा एनालाइजेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो वी विल एनालाइज आवर डेटा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, ठीक है। ये एक टूल है जिसका मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। एंड यू कैन सी दैट लाइक वी हैव 3 different major states here,
like we have first step that is called the data preparation. सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, डेटा को हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. द प्रोसेस नोन एज ETL, द टर्म कॉल्ड ETL. तो कार्तिक, ETL का मतलब यहाँ पे होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड से. यानी कि सबसे पहले हम लोग डेटा को सोर्स से एक्सट्रैक्ट कराते हैं गाइस. एक्सट्रैक्ट कराने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं. ट्रांसफॉर्म करने, ये ट्रांसफॉर्म जो टर्म लिखी है ये बहुत बड़ी टर्म है गाइस. यानी कि भले ही केवल ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलने से नहीं है यहाँ पे. बेसिकली डेटा हमेशा क्लीन हो ऐसा जरूरी नहीं होता. डेटा में इश्यूज हो सकते हैं, बग्स हो सकते हैं, वनरेबिलिटीज हो सकती है गाइस. सो व्हाट वी डू फर्स्ट, हम लोग डेटा को क्लीन करते हैं. दैट इज कॉल्ड द डेटा क्लेंजिंग प्रोसेस. यानी ट्रांसफॉर्म के अंदर भी दो चीजें हैं, एक होता है डेटा क्लेंजिंग और दूसरा होता है डेटा प्रिपरेशन. और प्रेप करने से मतलब यह है कि कई बार डेटा इस फॉर्म में होता है कि वी कैन नॉट क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ और अदर स्टफ. हम लोग एनालाइजेशन उससे नहीं परफॉर्म कर सकते बिकॉज वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं होता. तो डेटा प्रिपरेशन से मतलब है डेटा को स्ट्रक्चर बनाना, उसका ओरिएंटेशन चेंज करना अपने हिसाब से, सो दैट वी कैन एनालाइज दैट. ओके. और पहला आ गया डेटा क्लेंजिंग. तो ट्रांसफॉर्म में दो टर्म है, क्लेंजिंग एंड प्रिपरेशन. तो ETL का मतलब पहले E से हो गया एक्सट्रैक्ट, T से हो गया ट्रांसफॉर्म, और लास्ट थिंग होती है दैट इज कॉल्ड द लोड. L लोड. लोड का मतलब ये हो गया बेसिकली हम उस डेटा को कॉल करा के लेके आएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर BI के अंदर और वहां पे बैठ के उसे एनालाइज करते हैं. ठीक है. तो ये चीजें हैं बेसिकली जो यहाँ पे परफॉर्म करना हम लोग सीखते हैं गाइस. ठीक है. द पर्पज इज बेसिकली वो पर्पज हमारा फुलफिल होता है विजुअलाइजेशन से. और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं, कार्ड्स क्रिएट करते हैं. यस. हाँ वेंकटा. ओके. सो बेसिकली एंड देन वी फाइनली क्रिएट रिपोर्ट्स. ठीक है. तो डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, कार्ड्स क्रिएट करेंगे, एज वेल एज वी विल गो क्रिएटिंग, आफ्टर क्रिएटिंग दैट वी विल क्रिएट रिपोर्ट्स आल्सो. ठीक है. तो इस तरह का स्टफ है जो हम परफॉर्म करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर BI से. सो यहाँ पे कुछ रिलेटेड टर्म्स है जो मैंने अभी डिस्कस भी, लाइक डेटा कनेक्शन. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग सबसे पहले डेटा के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे सोर्स के साथ. देन सेकंड इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया है. ट्रांसफॉर्म का मतलब यहाँ पे डेटा क्लेंजिंग और डेटा प्रिपरेशन से है. देन डेटा मॉडलिंग, ये भी डेटा के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने से संबंधित है. And then we have the data visualization. Finally, we will visualize that with the help of graph and charts. And the last thing, that is preparing data reports. हम लोग reports create करते हैं. तो ये task होते हैं guys. Basically, these are the tasks of data analyst. ठीक है. और इसमें BI tools बहुत ज्यादा हमें हेल्प करते हैं. यानी कि ये सब काम हम बैठ के कहाँ करने, किस प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर BI. राइट. आप पॉइंट ये है कि आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन एक ही टूल से देखिए हम ये सब काम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं. इसीलिए इनको BI टूल्स कहा जाता है, बिजनेस इंटेलिजेंस, बिकॉज ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स, जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें फुलफिल करते हैं. ठीक है. और बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि डेटा सेट को लेके हम क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वेल प्रिपेयर्ड करते हैं, सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट, वी कैन ब्रिंग इनसाइट्स फ्रॉम दैट, वी कैन ब्रिंग कंक्लूजन्स फ्रॉम दैट. ठीक है. ये हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होता है. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट गाइस. सो ये स्लाइड्स वगैरह तो अलग चीज है, मैं आपको सीधे टूल्स दिखाता हूँ. सो इट वुड बी अ बेटर चॉइस मेरे ख्याल से, वो ज्यादा सही रहेगा. ठीक है. डिस्कशन मेरे ख्याल से ये इनफ है. सो गाइस वी हैव द टूल कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर BI. इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, ये बता दूं. लाइक आई एम यूजिंग फॉर टुडे, आई एम यूजिंग इट्स पावर BI डेस्कटॉप वर्जन, सो दैट यू कैन ऑप्ट इट और यूज इट ऑन योर डेस्कटॉप. ठीक है. लिमिटेड वर्जन के साथ आप इसे फ्रीवेयर टूल है, आप यूज कर सकते हैं लिमिटेड वर्जन. ठीक है. इसमें यानी कि कई फीचर्स नहीं अवेलेबल हैं, आपको साइन इन करना होता है और लाइसेंस परचेज करना होता है. बट फॉर नाउ अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है. सो ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं बेसिकली ये आपका पावर BI डेस्कटॉप का प्लेटफॉर्म है. ठीक है. एंड एज वेल एज इफ यू डिस्कस
यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे डेटा कुछ भी नहीं होता, आप देख लीजिए ब्लैंक फील्ड है और बेसिकली ब्लैंक पेजेस है यहाँ पे, एंड वी नीड टू कॉल डेटा फर्स्ट। ठीक है, हमें सबसे पहले डेटा सोर्सेस से डेटा कॉल कराना होता है। सो लेट मी शो यू द डेटा फर्स्ट। लाइक आई हैव डेटा here, we have population data here from 1950 to 2021, right? So you can see that we have two files. ठीक है, हमारे पास दो फाइल में डेटा पड़ा है, ये 1950 से लेके 2021 तक का पॉपुलेशन का गाइस फिगर यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सो मैं एक बार फाइल ओपन करके आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। सो यू कैन सी दैट वी हैव डेटा इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में डेटा है, और जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि टैबुलर फॉर्म एक ज्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्म होता है। ठीक है, और जो भी हमने टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, चाहे वो क्लाउड हो गाइस, चाहे वो डेटा बेसिस हो, चाहे कोई ऑफलाइन मेथड, यहाँ पे टैबुलर फॉर्म ही सबसे ज्यादा प्रिफर्ड किया जाता है। टेबल में डेटा ज्यादा ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक लगता है। इफ वी टॉक अबाउट द डेटा साइज, तो गाइज आप देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर फाइल में 2,08,952 एंट्रीज हैं, यानी कि करीब करीब डेटा का साइज जो है 2,10,000 के आसपास है गाइस। हर कंट्री का यहाँ पे डेटा अवेलेबल है पॉपुलेशन का 1950 टू 99, एंड वी हैव द कंट्री आईडी, वी हैव द कंट्री नेम, एंड देन द ईयर, पर्टिकुलर ईयर, एज ग्रुप में डेटा को स्प्लिट किया गया है, एंड देन द पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल, देन वी हैव टोटल एज ग्रुप, स्टार्ट एंड स्पैन। इस तरह के फील्ड्स अवेलेबल हैं जिसे हमें इसे प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज करना है। लाइक वी हैव द सेकंड फाइल, जैसे मैंने इसमें बताया, इसमें वनरेबिलिटी यहीं पे दिख रही है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह के एरर स्ट्रक्चर डेटा में देखे जाते हैं जो कि हम टैकल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही डेटा है और इसका साइज है करीब 4,383। जैसे मैंने बताया ये डेटा है 2021 तक का। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें ये फाइल कॉल कराना होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर। ठीक है, सो इसको ज्यादा बेसिकली यहाँ पे गेट डेटा का एक ऑप्शन होता है गाइस माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में, एंड यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ब्रिंग डेटा फ्रॉम आउटसाइड। याद रखें, डेटा को इन जनरल यहाँ पे प्रिपेयर नहीं किया जाता, प्रिपेयर इन द सेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं किया जाता। प्रिपेयर तो हम करते हैं बट क्रिएट नहीं करते। डेटा ऑलरेडी होता है और वो डिफरेंट सोर्सेज में होता है। इट कुड बी फ्रॉम एक्सेल फाइल, इट कुड बी और टेक्स्ट और सीएसवी फाइल, इट कुड बी फ्रॉम वेब, as well as it could be from different kind of database servers like SQL server। ठीक है, और जब आप मोर सेक्शन में जाते हैं गाइस, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स डेटा सोर्सेस की। यहाँ पे आपको एक पूरी लिस्ट खुल के आती है जिसमें आपको बता दूं मैं 100+ सोर्सेस को सपोर्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। सो दिस इज द ओनली रीजन। एक तो ये भी एक रीजन होता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की इतनी पॉपुलैरिटी है। आप यहाँ पे देखिए, कोई भी दुनिया का ऐसा सोर्स नहीं है जहां से डेटा कॉल नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, हर तरह की क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज, वेब सर्विसेज सच एज सेल्सफोर्स एंड ओरेकल एंड ऑल। ठीक है, हर तरह की सर्विसेज से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, लाइक वी हैव एज्योर एंड ऑल, वी हैव AWS, एज्योर, हर तरह की क्लाउड सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज से आप डेटा को यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। सो दिस इज द ओनली रीजन ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। और आपको एक फैक्ट बात बताऊं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के बारे में, तो कार्तिक हर महीने अपडेट होता है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होगा जो हर महीने अपडेट देता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेफिनेटली, आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे अपडेट अवेलेबल का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, हर महीने इसमें कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंज करता रहता है। ठीक है, सो ये काफी प्रोडक्टिव टूल है और काफी पॉपुलर भी है एज कंपैरिजन ऑफ टैबलू। ठीक है, टैबलू एक और बीआई टूल है जो कि पॉपुलर इंडस्ट्री में, वो केवल पॉपुलैरिटी का रीजन ये है कि वो इजी एक्सेस उसमें होता है, यानी कि आपको ऑपरेट करना, चलाने में आसानी होती है। बट अगर मुझे आप पूछे अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो मेरा मानना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई एक ज्यादा हेल्पफुल टूल है जहां पे ज्यादा एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं और कस्टमाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो गाइस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें वो जो फाइल्स हमारे पास थी, पहले तो मैं फाइल टाइप आपको बता दूं गाइस। ये अगर आप देखें तो आपको एक्सेल फाइल जैसी दिख रही है, बट ये एक्सेल फाइल नहीं है। ठीक है, एक्सेल फाइल किस तरह की होती है एक्चुअली, वो ऐसी होती है जिसमें टेबल बना होता है आइकन में। ठीक है, जबकि हमारी फाइल्स में टेबल नहीं बना हुआ है, ए कॉमा लिखा हुआ है। बेसिकली दीज आर CSV फाइल्स, और CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इट्स अ काइंड ऑफ टेक्स्ट फाइल बेसिकली। अब जब आप इसे डबल क्लिक करते हैं तो बेसिकली ये एक्सेल के साथ खुलती है भाई। बट अगर आप इसका एक्चुअल फॉर्म देखना चाहते हैं तो इसे ओपन विद नोटपैड कीजिए,
So this is the actual form of that data file. So you can see that एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से सेपरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ कॉमा. सो ये CSV फाइल होता है भाई, और CSV मेथड बहुत ज्यादा प्रिफर किया जाता है जब भी डेटा बल्क होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे. तो ये बहुत बल्की डेटा है और CSV सबसे बेस्ट मेथड होता है. CSV इसलिए प्रिफर किया जाता है गाइस क्योंकि इसका फाइल साइज काफी छोटा होता है, यानी एज कंपैरिजन ऑफ एक्सेल इसका फाइल साइज छोटा होता है, इसलिए CSV को ज्यादा प्रिफर किया जाता है. ठीक है. सो लेट्स ब्रिंग डेटा यार. सबसे पहले तो हम डेटा को यहाँ पे कॉल कराते हैं. सो गेट डेटा ऑप्शन में जाके हम लोग टेक्स्ट एंड CSV को से ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे, और यहाँ पे जहां पे भी मैंने वो डेटा रखा है, ये रही वो फाइल 1950 to 99, मैं इसे ओपन कर देता हूँ. एंड देयर इज अ जनरेटर, एक प्रीव्यू जनरेट होता है गाइस, यू कैन सी दैट. एंड बेसिकली यहाँ पे एक टर्म निकल के आ रही है लाइक फाइव, और फाइल ओरिजिन सबसे पहले लिखा हुआ है. सो इट्स अ काइंड ऑफ एनकोडिंग ऑफ पर्टिकुलर फाइल. आपको बता दूं कि कंप्यूटर में जो भी फाइल बनती है उसका एक एनकोडिंग कोडिंग मेथड होता है. तो ये UTF-8 उसने खुद ही ओरिजिनेट किया है, यानी फाइंड किया है. सेकेंड थिंग दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, डेलिमीटर. डेलिमीटर को कहा जाता है गाइस सेपरेटर बेसिकली. ठीक है. बेसिकली एक फील्ड CSV फाइल में एक फील्ड दूसरे फील्ड से सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ कॉमा. सो उसने देखिए खुद आइडेंटिफाई किया है. तो BI टूल्स का बेनिफिट यही है गाइस, उसने खुद आइडेंटिफाई किया, हमने नहीं बताया उसे. और भी ऑप्शन है वहां पे, लेकिन उसने खुद से आइडेंटिफाई किया कि एक फील्ड दूसरे फील्ड से कैसे सेपरेट हो रहा है, कॉमा से. और इसी वजह से देखिए कॉलम वाइज डेटा हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड होके आ रहा है. देन लास्ट थिंग आ रही है डेटा टाइप डिटेक्शन. तो बेसिकली पावर BI या BI टूल्स जो होते हैं बेसिकली वो ऑटोमेटिकली डेटा का डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे बेस्ड ऑन 200 रोज, तो पावर BI ने एग्जैक्टली क्या किया है, इस डेटा फाइल की 200 रोज को जज करके यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन किया होगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. और अभी के लिए मैं फाइल को लोड कर दे रहा हूँ. सो फाइल जैसे ही लोड होती है बेसिकली थोड़ा सा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, और यहाँ पे फील्ड सेक्शन में वो फाइल आपके पास यहाँ पे कॉल हो जाती है, सोर्स फाइल. ठीक है. तो सोर्स फाइल बेसिकली ये पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे आ गई है, और ये कनेक्शन जो है सोर्स के साथ स्टेब्लिश है, ये बात ध्यान रखिएगा. ऐसी हमें दूसरी फाइल भी गाइस कॉल करानी है. गेट डेटा ऑप्शन में गए अगेन एंड क्लिक ऑन टेक्स्ट एंड CSV. जस्ट हिट क्लिक ऑन CSV ऑप्शन and select 2000 to 21. just browse this again. फिर से वही आपके सामने विंडो खुल के आता है, डायलॉग विंडो, जिसमें उसने ओरिजिन वगैरह डिफाइन कर लिया, डेलिमीटर कॉमा एंड 200 रोज के बेसिस पे डेटा टाइप. मैं इसे अभी के लिए लोड कर लेता हूँ. अब गाइस अगर डेटा नीट एंड क्लीन होता तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसे विजुअलाइज कर सकते थे, बट फॉर नाउ क्या आपको अभी कोई फील्ड समझ में आ रहा है, कौन सा फील्ड क्या है? तो आप लोग देख रहे होंगे इसके टाइटल्स में भी इशू है. यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है. सो अभी डेटा के साथ काम करना फिजिबल नहीं है. सो द पॉइंट इज हमें इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हम इसका यूज कर सके डेटा विजुअलाइजेशन के लिए. यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं बेसिकली जो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, बिल्ड विजुअल विद योर डेटा. हम लोग ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो आप लोग, ये पेज कहलाता है, और यहाँ पे हम लोगों को डेटा विजुअल्स बनाने होते हैं. दीज आर द टाइप ऑफ चार्ट्स. वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स हियर. ठीक है. हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहला काम हमारा होता है एक्सट्रैक्ट. तो हमने कर लिया, बट सेकंड पॉइंट इज ट्रांसफॉर्म. ठीक है. तो हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होगा. सो ETL प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए सेकंड स्टेप होता है ट्रांसफॉर्म गाइस. और आपको बता दूं ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे पावर BI के अंदर एक एडिशनल टूल दिया गया है जिसे कहा जाता है पावर क्वेरी. ठीक है. बेसिकली द टूल नेम इज माइक्रोसॉफ्ट पावर BI, बट डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक एडिशनल टूल दिया गया है, सब टूल दिया गया है इसका, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी. और क्वेरी में जाने के लिए आपको किसी भी क्वेरी पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके एडिट क्वेरी में आप जाएंगे एंड यू विल गेट इट. सो ये पावर क्वेरी एडिटर है गाइस यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप लोग जो है इजीली डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है. इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है ये समझने की चीज है, जो भी चेंजमेंट गाइस हम लोग करेंगे वो यहाँ लोकली होंगे, ओरिजिनल फाइल पे इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता. आप समझ रहे हैं. बेसिकली सोर्स फाइल को इंपैक्ट किए बिना हम लोग यहाँ पे डेटा में चेंजमेंट कर सकते हैं, जो कि यही लोकली होंगे.
सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, यानी कि सोर्स फाइल को इम्पैक्ट नहीं होता है कोई, बेसिकली वो सोर्स फाइल जो है क्लाइंट की तरफ से आई हुई होती है, सो हमें राइट्स भी नहीं होता है कि उसमें कोई चेंजमेंट करें। तो हम जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ पे लोकली करेंगे, यानी कि डेटा में, ओरिजिनल डेटा में गार्बेज बना रहेगा वैसे ही, बट हम यहाँ पे उसे ठीक करेंगे, स्विच करेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हमें लर्न करनी है, सीखनी है। ठीक है, सो यू कैन सी दैट वी हैव बोथ क्वेरीज हियर। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे तक ले आया हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। अगर आप लोग चाहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड करें, तो सबसे पहले आप google.com पे जाए एंड यू जस्ट नीड टू प्लेस हियर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। ठीक है, सिस्टम कन्फिगरेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए कैंडिडेट्स इसके लिए, और ये पहला लिंक जो आ रहा है इस पे क्लिक कीजिए आप। तो क्लिक करते ही इट विल रिडायरेक्ट यू टुवर्ड्स द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट, और वहां पे डाउनलोड सेक्शन में यू कैन फाइंड द डाउनलोड ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन दैट। एंड यहाँ पे 64 बिट का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इसे क्लिक कीजिएगा, और अगर 32 बिट का है तो इसे क्लिक कीजिएगा। बट मुझे अभी यही चाहिए, तो आपको बस ये सेलेक्ट करके क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। 382 MB का जो ये फाइल है आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, एंड जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वैसे ही पावर बीआई डेस्कटॉप भी इंस्टॉल होगा, और आप इंस्टॉल करके इसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इंटरनेट पे डाउनलोड कर सकते हैं इसे। जैसा मैंने बताया, लिमिटेड वर्जन के साथ ये फ्रीवेयर है, यानी कि लिमिटेड इस ये सब ऑप्शन आप जो है फ्रीली विदाउट हैविंग एनी लाइसेंस यू कैन यूज देम। ठीक है, आप सीख सकते हैं सीखने के लिए, और हमसे गाइडेंस ले सकते हैं कभी भी इसके लिए। ठीक है, सो यहाँ पे डेटा में इश्यूज हैं गाइस, इफ यू आर एबल टू सी, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे इश्यूज हैं डेटा में जो कि हमें रेक्टिफाई करने हैं। सो साक्षी यहाँ पे देखिए टाइटल्स में इशू है। ठीक है, और इफ यू आर एबल टू सी यार, टाइटल यहाँ पे कहीं नीचे घूम रहे हैं जबकि इन्हें ऊपर होना चाहिए। सो वी नीड टू फाइंड देम, इश्यूज को हमें फाइंड करना है और उसे रिजॉल्व करते हुए डेटा को प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो देखिए इसे कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो ये जो पहला रो है आपको दिख ही रहा होगा, ये कल्प्रेट है। ठीक है, so we have a section that is called the remove rows. With the help of this option we can remove top rows, right? If you click on that, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो you can find the options like remove top rows, remove bottom rows, then we have remove alternate rows, we have remove duplicates, we have remove blank rows and remove errors. इस तरह के 6 ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं guys. With the help of them you can remove these rows. अभी मुझे रिक्वायर्ड है टॉप रोज रिमूव करने का, तो आई जस्ट क्लिक ऑन दैट। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये डायलॉग विंडो खुल के आता है जो कि मुझे पूछ रहा है कि कितनी रोज को आप रिमूव करना चाहते हैं। तो इस केस में आप देख पा रहे होंगे एक ही रो रिमूव करनी है, सो आई प्लेस्ड हियर 1, क्लिक ऑन ओके। सो यू कैन सी दैट फर्स्ट रो क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। ओके, तो पहला रो डिलीट हो गया है। अब सेकंड इशू जो यहाँ पे फाइंड हो रहा है डेटा में वो ये है कि ये जो फर्स्ट रो आपको अभी दिख रहा है वो बेसिकली टाइटल होना चाहिए, इजंट इट? तो ये टाइटल होना चाहिए, लेकिन ये अभी नीचे कहीं फ्लोट कर रहा है। तो इसे हमें टाइटल बनाना है, उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है गाइस, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आप पाएंगे कि वो जो पहला रो था वो क्या बन गया है, हेडर बन गया है। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे ऑप्शंस इस तरह से दिए गए हैं आपको, जो आप डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू देख रहे हैं यहाँ पे, आपको आपके डेटा को प्रिपेयर करने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शंस रिक्वायर्ड होते हैं वो सब यहाँ पे प्रॉपरली दिए गए हैं। सो इट्स क्वाइट इजी टू मैनेज। ठीक है, इससे काफी आसानी हो जाती है काम करने में। ठीक है, सो इस तरह से। इसके अलावा रिमूव रोज में और भी इश्यूज है, लाइक वी कैन रिमूव रोज फ्रॉम बॉटम ऑल्सो, वी कैन रिमूव ऑल्टरनेट रोज ऑल्सो। इस तरह के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, विद द हेल्प ऑफ देम वी कैन रिमूव देम। ठीक है, इस तरह के इश्यूज को हम टैकल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइक रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव ब्लैंक रोज। कई बार डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं डेटा में, रिमूव ब्लैंक रोज, कई बार ब्लैंक रोज होती हैं, और कई बार एरर्स होते हैं। सो गाइज ये 3 ऑप्शन हम लोग यहाँ से परफॉर्म नहीं करते हैं। उसका रीजन है कि ये 3 ऑप्शंस आप कभी भी ब्लाइंडली परफॉर्म नहीं करेंगे बिना उसे जाने। पहले हमें एरर को जज करना होगा कि वो रेक्टिफाइबल है कि नहीं, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है कि नहीं, और ब्लैंक रोज भी हमें देखना होगा कि प्रॉपर ब्लैंक है या नहीं, और डुप्लीकेट्स ऑल्सो कि भाई डुप्लीकेट प्रॉपर डुप्लीकेट है या नहीं है। तो ये सबको जज करते हुए तभी हम डिसाइड कर सकते हैं, प्रॉपर कर सकते हैं अपने काम को। ठीक है, तो अभी के लिए इन ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
डेटा का एरर अगर आपको फाइंड करना है, अब देखिए इसमें करीब करीब मैंने आपको दिखाया था कि 6 लाख के आसपास रोज थी इस फाइल में, फर्स्ट वाली में। तो मैं अगर स्क्रॉल करके तो एरर नहीं खोज सकता, ठीक है, इट विल टेक टू मच टाइम। सो देयर आर सम स्ट्रेटजीज, कुछ तरीके हैं, कुछ टैक्टिक्स हैं जिसकी हेल्प से एरर फाइंडिंग में हमको हेल्प मिलता है। लाइक फर्स्ट थिंग इज दैट इज कॉल्ड द डेटा टाइप। डेटा का जो टाइप है बेसिकली वो प्रॉपर होना चाहिए गाइस। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे डेटा क्या है, नंबर्स में है। तो यहाँ पे 1 2 3 लिखा आ रहा है, बेसिकली ये एंटाइटल कर रहा है कि यहाँ पे डेटा टाइप क्या रखा गया है। तो बेसिकली इट इज होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, होल नंबर है, ठीक है। जो भी स्टेप आप परफॉर्म करते हैं गाइस वो यहाँ पे राइट साइड में अप्लाइड स्टेप में आ जाता है। और एनी टाइम आपको फील होता है कि कोई स्टेप गलत परफॉर्म हो गया है तो यहाँ से कभी भी क्रॉस करके उसे अंडू किया जा सकता है, ठीक है। इवन 1 मंथ लेटर आपको 1 महीने बाद रियलाइज हुआ कि कोई स्टेप आपने गलत परफॉर्म किया है, तो आप यहाँ पे आके उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। कोई भी स्टेप कभी भी अंडू किया जा सकता है। सो ये बीआई टूल्स में ये चीजें हैं। और माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का ज्यादा पॉपुलैरिटी का रीजन यही है कि पावर क्वेरी एडिटर एक बहुत ही बेनिफिशियरी टूल है डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए। यहाँ पे जैसा मैं पहले भी बता दूंगा, जो भी चेंज कर रहे हैं हम यहीं पे कर रहे हैं, ओरिजिनल डेटा वैसे का वैसे ही है गाइस, अगर आप लोग देखें यहाँ पे। सो ये तो वही है, उसमें तो अभी भी एरर्स के एरर्स वैसे ही बने हुए हैं, लेकिन हम इसी फाइल से लिंक करते हुए यहाँ पे डेटा को लाए हैं और चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे काम किया जाता है। अब जैसे ये लोकेशन है बेसिकली, तो ये टेक्स्ट ही होना चाहिए। वी हैव टाइम, तो इसका डेटा टाइप हमें नंबर रखना चाहिए गाइस, ठीक है, होल नंबर। तो यहाँ पे होल नंबर रखा मैंने। एज ग्रुप टेक्स्ट ही होगा। एज ग्रुप स्टार्ट, बेसिकली एज ग्रुप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो वो 0 से हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर होना चाहिए, यानी कि होल नंबर। We have other data types such as we have decimal number, we have percentage, we have date and time, we have text data type, we have boolean और true and false data type, ठीक है। as well as we have time duration, other data types। इस तरह के कई सारे data types हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अलग अलग डेटा के लिए appropriate data type होना चाहिए। एज ग्रुप स्टार्ट के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे नंबर होना चाहिए, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ गाइस, होल नंबर। एज ग्रुप स्टार्ट बेसिकली बता रहा है कि 0 से शुरू हो रहा है, और एज ग्रुप स्पैन बेसिकली इस स्पैन का साइज बता रहा है। तो 0 to 4 टोटल क्या होता है, 5। तो यहाँ पे 5 मेंशन है, इसे भी मैं नंबर कर देता हूँ, होल नंबर। और गाइस आगे आते हैं तो देखो पॉपुलेशन मेल, ये एक डेसिमल नंबर है, बेसिकली यहाँ पे फिगर डेसिमल में है। बट ऊपर जो आप डेटा टाइप देख रहे हो, दीज आर बेसिकली टेक्स्ट, ठीक है। तो हमको इसे चेंज करना होगा और कन्वर्ट करना होगा डेसिमल। तो ये देखिए तीनों को मैंने डेसिमल कन्वर्ट किया। इफ यू आर एबल टू सी, हर टाइटल के नीचे एक ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ये जो ग्रीन कलर का लाइन है गाइस, ये एरर डिटेक्शन के लिए होता है असल। अगर ये टोटल ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब यह है कि पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी एरर नहीं है। अगर मैं कर्सर इसको रखूं इसके ऊपर, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये बताता है 100% वैलिड, 0% एरर और 0% एम्प्टी। यानी कि ना ही एम्प्टी है और ना ही एरर्स इसमें है। लेकिन इस पे हम फुल्ली श्योरली यकीन नहीं कर सकते गाइस। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि कई बार डेटा टाइप को लेके इश्यूज होते हैं। सो वी मस्ट अवेयर अबाउट देम, हमें उनके बारे में, यानी कि डेटा टाइप जब अप्रोप्रिएट होता है तभी ये लाइन सही से काम करती है, ठीक है, तभी ये सही से काम करती है। और अगर इसीलिए मैंने सबसे पहला काम यही किया कि डेटा टाइप को ठीक किया है guys, ठीक है ना। तो डेटा टाइप जब अप्रोप्रिएट होता है तो दैट विल हेल्पफुल, वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है। और ये ग्रीन लाइन तभी सही से काम करती है। अब लेट्स से यहाँ पे जैसे मैंने डेटा टाइप, ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे लोकेशन आईडी में टेक्स्ट चल रहा है, मैं इसे नंबर कर देता हूँ। अब देखिए टेक्स्ट और नंबर डेटा टाइप में एक बेसिक डिफरेंस है, अगर आपको बताऊं। टेक्स्ट डेटा टाइप कैन कंसिस्ट बोथ नंबर एंड टेक्स्ट बोथ। यानी कि जो टेक्स्ट डेटा टाइप होगा वो नंबर भी रख सकता है गाइज और टेक्स्ट भी रख सकता है। वेरएज जो नंबर डेटा टाइप होता है दैट ओनली कैन कंसिस्ट अ नंबर। अब लेट्स से यहाँ पे मैंने टेक्स्ट रखा है डेटा टाइप, लेट्स से, तो आपको पता है वो नंबर भी रख सकता है और टेक्स्ट भी रख सकता है। तो अगर लेट्स से यहाँ पे कोई टेक्स्ट की एरर होगी तो ये एरर थोड़ी दिखाएगा आपको, ये बताएगा 100% एक्यूरेट, सही है ना। तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर कर दिया और तब भी ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब ये सही है।
क्योंकि अगर कोई टेक्स्ट आता तो कार्तिक यहाँ पे वो एरर मार्क करता हमें, लेकिन वो कोई एरर मार्क नहीं कर रहा है। ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे हम लोग बीआई का जो इंटेलिजेंस है उसमें अपना इंटेलिजेंस मिक्स करके, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिक्स करके जो टास्क होते हैं हमारे उन्हें परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वही है, ओवरऑल कहने का मतलब यही कि मशीन की इंटेलिजेंस के साथ 100% हम यकीन नहीं कर सकते उस पर। यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी रिक्वायर्ड है। एंड दीज आर द टेक्निक्स ऑफ फाइंडिंग एरर्स। एरर्स को कैसे फाइंड करें, ये उसके टेक्निक्स हैं। तो डेटा टाइप उसमें से एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपका जो डेटा का टाइप है बेसिकली वो प्रॉपर होना चाहिए। इफ इट इज प्रॉपर तो आपको जो है एरर फाइंडिंग में इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन टेक्स्ट जहां पे डेटा टाइप है गाइस, वहां पे आप इस ग्रीन लाइन पे फॉर्मली बिलीव नहीं कर सकते। इसका रीजन बताता हूं आपको मैं, क्योंकि मैंने टेक्स्ट की अभी प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि टेक्स्ट कैन कंसिस्ट बोथ। टेक्स्ट जो है क्या कर सकता है, नंबर को भी रख सकता है और टेक्स्ट को भी। लेट से यहाँ पे कोई इशू होगा, यानी कि कोई नंबर रख दिया होगा, तो टेक्स्ट उसका एरर नहीं देगा बेसिकली, यानी कि डेटा टाइप उसका एरर नहीं देगा। तो ये दिक्कतें इसमें रहती हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा जब भी टेक्स्ट फील्ड होगा गाइस। एंड स्ट्रगल से मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि आपको गाइस थोड़ा सा स्क्रॉल करके डेटा देखना पड़ेगा। और यहाँ पे शॉर्ट का एक ऑप्शन होता है एंड वी कैन हल्के हल्के करके हम स्क्रॉल करके इसमें जज कर सकते हैं। बेसिकली अगर कोई एरर होगा, इश्यू होगा, तो वो हमें आंखों से दिखाई देगा। ठीक है। तो इसको स्लाइटली स्क्रॉल करके मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कंट्रीज नेम वैसे भी लिमिटेड है, 192 200 कंट्रीज यहाँ पे डेटा में होंगी। और मैं बस स्क्रॉल करके उसे देख लेता हूँ और मैंने पाया कि कोई एरर नहीं है, तो इट मीन्स कि परफेक्ट है। यानी टेक्स्ट फाइल को आपको दोबारा चेक करने की कुल मिला के जरूरत है। ठीक है ना। टेक्स्ट फाइल को हमें चेक करना ही करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है भाई। ठीक है। चलिए, अब जैसे ये एज ग्रुप है, सो यहाँ पे भी टेक्स्ट है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई टेक्स्ट कैन कंसिस्ट बोथ, तो यहाँ पे भी इशू हो सकता है भाई, ये ग्रीन लाइन पे हम फेथ नहीं कर सकते। सो यू नीड टू गो टुवर्ड्स दी ड्रॉप डाउन, लोड मोर पे यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड सो यू कैन फाइंड नियर वी हैव एरर्स। यहाँ पे एरर भी दिख गए हैं अप फ्रंट। सबसे पहले देखिए 14 ऑप्ट करके एरर है, और स्क्रॉल डाउन करते हैं, वी हैव 9th में हियर। एंड दीज आर द एरर्स बेसिकली इन डेटा सेट। डेटा सेट में इस तरह के एरर हैं, जबकि बाकी रेंजेस ठीक दिख रही हैं। ठीक है। एरर को बाद में डिस्कस करेंगे। एक एरर हमने पॉइंट आउट कर ली है, बाकी ये नंबर है और ये ग्रीन लाइन आ रही है, तो इस पे फॉर्मली बिलीव कर सकते हैं ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। और आगे डेसिमल्स है और उसमें भी ग्रीन लाइन पूरी आ रही है 100%। इट मीन्स देर आर नो एरर्स, यहाँ कोई एरर नहीं है गाइस। ठीक है। ये है इस तरह से। ठीक है। सो अब इशू हमें जो फाइंड हुआ था गाइस, वो इस सेक्शन में हुआ है, और इसको कैसे टैकल हम लोग करते हैं ये सीखते हैं इसे। ठीक है। ये बेसिकली एक ओवरव्यू है गाइस, थोड़ा क्योंकि टाइम लिमिटेशन होती है इसलिए मैं उस हिसाब से थोड़ा हो सकता है तेज पढ़ा रहा हूँ, पेस शायद थोड़ा सा हाई हो। बट बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे चीजें चल रही हैं। और इन चीजों को सीखने के लिए बेसिकली आपको प्रॉपर डेडिकेटली कोर्स करना होता है, वहाँ पे चीजें बहुत स्मूथली होती हैं। और एक लार्ज लेवल पे हम लोग प्रोजेक्ट्स को करते हैं। ठीक है। डेटा, बड़े बड़े डेटा सेट्स है। लाइक आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आम आदमी पार्टी, मैं किसी पॉलिटिकल साइड का नहीं हूँ, लेकिन लाइक बीजेपी, खासकर इन दोनों पार्टीज का आपने एक सिनेरियो देखा होगा। अक्सर ये चुनाव से, इलेक्शन से पहले जो है एक प्रिडिक्शन पास कर देते कि हमें इतनी सीट मिल रही है एंड ऑल। या आपने जो है उसमें भी देखा होगा, जो न्यूज एजेंसीज होती हैं, जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, वो लोग सर्वे पास करते हैं गाइज, और एग्जिट पोल आता है। गाइस वो सारा का सारा डेटा बिना डेटा एनालिटिक्स के पॉसिबल नहीं है। वो भी डेटा एनालिटिक्स से ही एनालाइज किया जाता है डेटा को। ठीक है। और उसमें बेसिकली उसका साइज होता है, सैंपल साइज की 15,000 लोगों से पूछा गया। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, और उनसे जो है कुछ रिस्पॉन्सेस लिए गए होते हैं, और उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करके बताया जाता है कि हमें इतनी सीट्स आ रही है। और आपने अक्सर पाया होगा कि वो प्रिडिक्शन काफी हद तक सही भी जाता है। ठीक है। सो इट इज ड्यू टू डेटा एनालाइजेशन। ये डेटा एनालाइजेशन के रीजन से पॉसिबल हो पाता है गाइस, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। सो डेटा एनालाइजेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आप किसी भी तरह का, यानी कि टेक्सचुअल, वहां पे तो टेक्सचुअल होता है डेटा, बेसिकली जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो टेक्स्ट में होते हैं, आंसर्स होते हैं। ठीक है ना।
तो उनको भी जज किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ड्यूरिंग कोर्स हम लोग यही करते हैं कि ये जो नंबर्स बेस्ड डेटा है वो तो लेते ही लेते हैं, साथ में हम लोग प्रेफर करते हैं कि किसी तरह का जो है टेक्सचुअल डेटा भी लिया जा सके बेसिकली, ठीक है ना। तो वो टेक्सचुअल डेटा भी हम लोग प्रेफर करते हैं, लाइक सर्वे बेस्ड डेटा, इस तरह की चीजें होती हैं हमारे पास अवेलेबल होते हैं इस तरह के डेटा सोर्सेस। तो उसको हम लोग जज करते हैं, उससे सीखते हैं कि कैसे करके एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें टूल्स की हेल्प से लर्न करने की होती है, जो हम यहाँ पे लर्न करते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे एरर मैंने फाइंड की थी। अब थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं कि ये एरर को टैकल कैसे करें या क्या गलती हो रही है। सो इस फील्ड को समझे अगर हम लोग, साक्षी, तो हो ये रहा है कि यहाँ पे एज ग्रुप मेंशन है, और 0 to 4, तो अगला होगा 5 to 9, देन 10 to 14। तो आप देखेंगे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 5 to 9 आपको नहीं मिलेगा यहाँ, और 10 to 14 भी नहीं है, लेकिन 5 to 9 की जगह पे 9th में मुझे जरूर दिख रहा है, और 10 to 14 की जगह पे 14 ऑक्ट दिख रहा है। फिर 15 to 19 है जो कि बिल्कुल सही है, 20 to 24, यानी मुझे पता लग रहा है कि एरर किस टाइप की है। बेसिकली ये 14 ऑक्ट नहीं है, ये 10 to 14 है, और ये 9th में नहीं है, इट्स 5 to 9 बेसिकली, राइट। तो यानी कि इस तरह के इश्यूज यहाँ पे डेटा में हैं, एंड वी नीड टू टैकल दिस, हमें इसको ठीक करना होगा, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल मैथोलॉजी है। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये एरर बहुत छोटी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इसको आपको ना शॉर्ट करके दिखाऊं 14 ऑक्ट को ही, तो इट्स अ ह्यूज एरर। ये 14 ऑक्ट बहुत बार रिपीट हो रखा है, और ऑल अराउंड 15,000 रोज में कम से कम ये होने वाला है, ठीक है। जैसे कि नीचे देख ही पा रहे हैं 999+ कह रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि ये करीब 10 to 15,000 रोज होंगे, यानी मैं स्क्रॉल करता रह जाऊंगा और ये कभी खत्म नहीं होगा, ये देख लीजिए, ठीक है ना। और मैं देखिए स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, ये होए जा रहा है, ठीक है। इससे पता चलता है कि ये ह्यूज डेटा है, ठीक है। यानी 14 ऑक्ट की एरर ही इतने टाइम से यहाँ पे है, ठीक है। सो मैं ज्यादा स्क्रॉल नहीं करूंगा। तो ये हमें भले ही एक छोटी सी एरर लग रही हो, लेकिन इट्स ह्यूज, ठीक है। फिल्टर रो को यहाँ से अनचेक कर रहा हूँ, स्टेप क्लियर किया, और अब मुझे 14 ऑक्ट को बेसिकली रिप्लेस करना है 10 to 14 से। तो देखिएगा गाइस कैसे इस काम को करते हैं। यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज का ऑप्शन होता है, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट एंड नीड 14 ऑक्ट यहाँ पे मेंशन कीजिए, एंड रिप्लेस इट विद 10 to 14। एडवांस में जाके मैच एंटायर सेल कंटेंट्स जरूर चेक करना होता है। इसका रीजन ये है कि कहीं पे अगर एक्चुअल में डेट लिखी होगी 14 ऑक्ट, तो ये उसे भी चेंज कर देगा। सो आपको अवॉइड करना है उसे, इसलिए एंटायर जो रिप्लेस विद करने के बाद मैच एंटायर सेल कंटेंट जरूर रखें, और इसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द चेंज। अब अगर मैं ड्रॉप डाउन में क्लिक करूंगा इस, तो मुझे 14 ऑक्ट नहीं मिलने वाला, उसकी जगह पे क्या आ गया है 10 to 14, यानी रिप्लेसमेंट सही रही। ऐसे ही गाइस ये 9th में है, इट शुड बी 5 to 9। So again, go to replace value 9th May and then 5 to 9। एडवांस में जाके मैच एंटायर सेल कंटेंट कीजिए और ओके कर दीजिए, और एक बार यहाँ आके लोड मोर करके वेरीफाई जरूर करें जो भी चेंज कर रहे हैं। तो ये देखिए 5 to 9 आ गया है, इट मींस आई हैव रेक्टिफाइड दैट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बेसिकली डेटा को रेक्टिफाई किया जाता है। ये चीजें यहाँ पे लर्न कराई जाती हैं, आपको सिखाई जाती है, क्योंकि देखिए नीट एंड क्लीन डेटा पे काम करना तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, मतलब हर कोई कर सकता है। बट डेटा को प्रिपेयर कैसे किया जाए वो चीज सीखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। ये है। और इसके अलावा गाइस अगर मुझे आप पूछे तो मुझे ये एज ग्रुप स्टार्ट और स्पैन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एज ग्रुप रेंज है। तो मैं इन दोनों कॉलम को रिमूव कर सकता हूँ। मैं दोनों कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे रिमूव कॉलम्स का ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये दोनों कॉलम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब मेरे पास नीट एंड क्लीन डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, और इसमें कोई भी एरर्स नहीं है। इसी तरह से मैं दूसरी क्वेरी में अब जाता हूँ, और यहाँ पे इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो वी कैन फाइंड हियर वी हैव एरर्स, इस तरह के एरर्स यहाँ पे हैं, इस तरह के एरर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड वी नीड टू टैकल दिस। अगर मुझे इसे रिमूव करना है, सबसे पहले तो देखिए टाइटल को ही लेके इशू है, तो इसे टाइटल बनाना है तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर आप कीजिए, तो ये हेडर में चला जाएगा। एंड वी डोंट नीड दीज एनए फील्ड्स, बेसिकली दीज आर द गेस्ट
और ये वो अनचाहे मेहमान है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट इन्हें मैं चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि सभी NA है एंड आई नीड टू रिमूव देम। तो यहाँ पे गाइस रिमूव रोज में बीच से रोज हटाने का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। वी हैव टॉप रोज, बॉटम रोज एंड अल्टरनेट रोज, बट वी डोंट हैव कि बीच से कोई रेंज ऑफ रोज आप हटा सकें। तो NA क्योंकि एंड टू एंड है तो मैं इसे अनचेक कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट। तो मैं यहाँ आता हूँ, NA सर्च करता हूँ और NA को अनचेक करके ओके कर देता हूँ। तो देखिए NA फील्ड्स खत्म हो गए, ठीक है। एंड डेटा टाइप पे फिर से वर्क करने की जरूरत है। सो मेक इट the whole number, then the text, then the whole number, and this is okay with the text. एज ग्रुप स्टार्ट और स्पैम मैंने वहां से डिलीट किए थे, तो मैं यहां से भी गाइज रिमूव कर रहा हूं इन कॉलम्स को, रिमूव कॉलम्स। एंड देन वी हैव पॉपुलेशन मेल, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस and select the decimal. Then we have population female, then select that and population total. इसे भी डेसिमल कर दिया। सो यू कैन सी दैट कोई भी एरर्स इशू इसमें नहीं दिख रहे हैं। हाँ, एक बार टेक्स्ट फील्ड को स्क्रॉल करके जरूर चेक करना चाहिए। लोड मोर पे क्लिक करके, ओह यहाँ पे भी एरर्स है गाइस, एंड यू कैन सी दैट वी हैव ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक्स इश्यूज हैं, बाकी सब तो अप्रूव। ये 14 ऑक्ट यहाँ पे भी आ रहा है, 5 सितंबर, ओहो यहाँ पे भी एरर्स है गाइस। सो इट्स 5 सितंबर एंड ब्लैंक्स 5 टू, ये तो 5 to 9 ही लग रहा है मुझे, क्योंकि ये मिसिंग है 5 7, ठीक है। एक बार इसे शॉर्ट करके जज कर लेते हैं गाइस। पहले तो ब्लैंक्स, तो ये नल, ओ माय गॉड काफी सारे हैं गाइस, ठीक है। और एंड टू एंड है, तो इन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हो जाती है यहाँ से, यानी नल को हम अनचेक करके हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ गाइस और नल को फाइंड करके अनचेक कर देता हूँ। इसमें तो आ भी नहीं रहा है, 1 सेकेंड, लोड मोर करके स्क्रॉल, ये रहा। मैं अनचेक कर देता हूँ तो नल खत्म हो जाते हैं। सो वी डोंट हैव नल राइट नाउ, ठीक है। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे डेटा में इशू दिख रहे थे हमें। वी हैव 5 सितंबर, आई वांट टू चेक दैट बेसिकली फर्स्ट कि कितनी बार एरर आ रही है। ओहो ये काफी टाइम है गाइस। सो वी नीड 5, इट्स 5 to 9 बेसिकली, राइट। तो फिल्टर रो रिमूव करता हूँ गाइस यहाँ से मैं, एंड दूसरी एरर भी एक बार जज कर लेते हैं। 5 सितंबर एंड वी हैव 14 ऑफ, ये 10 to 14 है, ऑक्ट 14, ओके। ठीक है। तो यहां से 5 सितंबर 057 057, इसे हमें करना है 5 to 9। एडवांस में जाके मैच एंटायर सेल कंटेंट एंड ओके, देन लोड मोर करके एक बार रीजर्च करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया है, 5 to 9 आ गया है हमारे डेटा सेट में। ये 14 ऑक्ट है असल में, 10 to 14, तो ऑक्ट 14, रिप्लेस वैल्यू ऑक्ट 14 को रिप्लेस करते गाइस हम लोग 10 to 14 से। एडवांस ऑप्शन में जाके मैच एंटायर सेल कंटेंट एंड क्लिक ऑन ओके। सो अब मेरे ख्याल से इसमें इशू नहीं है, एक बार लोड मोर करके देख लेता हूँ। ब्लैंक वैसे मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ गाइस, तो मुझे यहाँ से दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी आप चाहते हैं तो यहाँ से अनचेक कर दीजिए, तो ये डेटा हमारा यहाँ से क्लीन हो जाएगा। सो देर आर नो मोर इश्यूज। एक बार कंट्री नेम को भी स्क्रॉल करके हम लोग देख लेते हैं, सो दैट कोई इशू ना बचे। तो एक बार स्क्रॉल डाउन करके जरूर देखें। तो स्क्रॉलिंग इज अ मेथड, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन रिजॉल्व आवर इश्यूज। जो भी इस तरह के डेटा में इश्यूज होते हैं वी कैन फाइंड दैम, ओके। सो यहाँ पे अभी मुझे कोई इश्यू नहीं मिल रहा है, और अप्रोप्रिएट मैनर में देखें तो डेटा हमारा प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। तो ये क्लीन है, अभी इसमें इश्यूज कुछ भी नहीं रह गए। नाउ वी कैन सी दैट जो ये डेटा हमने रखा है बेसिकली अलग अलग फाइल्स में है, लेकिन एक ही तरह का डेटा है, ठीक है।
So basically you can say that this is population 1 and then population 2. So guys, we can have the data in a single file. हम उसे एक सिंगल फाइल में ला सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास जो एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, वी हैव अपेंड क्वेरीज. ठीक है, अपेंड क्वेरीज क्या होता है? बेसिकली एक डेटा को दूसरे डेटा के ठीक नीचे जो है ये कलेक्ट करके आपके पास ले आएगा, स्टैकिंग ऑफ डेटा बेसिकली. ठीक है, तो इसको करने के लिए यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट एनी क्वेरी एंड क्लिक ऑन अपेंड क्वेरीज. तो ये ड्रॉप डाउन में क्लिक करता हूँ, वी हैव टू ऑप्शंस, एक है अपेंड क्वेरीज और एक है अपेंड क्वेरीज एज न्यू. तो मैं एज न्यू कर रहा हूँ इसे, और यहाँ पे टू एंड मोर टू टेबल्स ही हमारे पास है. तो 1950 तो खुद ही सेलेक्ट हो गई है, बिकॉज क्योंकि मेरा सिलेक्शन वहां पे था. मुझे सेकंड टेबल में आके सेकंड वाली सेलेक्ट करनी है एंड क्लिक ऑन ओके. जैसे ही आप ओके करते हैं तो अपेंड वन करके एक फाइल आ जाती है गाइस, और पूरा का पूरा डेटा आपस में क्या हो गया है, एक ही कहेंगे क्वेरी में आ गया है, यानी दोनों एक तरह से अपेंड हो गए हैं. ठीक है, इसको रीनेम कर देता हूं मैं, और राइट क्लिक करके वी कैन रीनेम इट, एंड वी कैन रीनेम इट इज कंबाइंड पॉपुलेशन. ठीक है, सो इस तरह से देखिए कंबाइंड पॉपुलेशन करके आ गया है. और जो भी हम चेंजेस गाइज यहाँ पे परफॉर्म करते हैं पावर क्वेरी एडिटर में, इफ यू वांट देम टू इफेक्ट, इनको आप इफेक्ट में अगर लाना चाहते हैं तो क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा. जब आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रही है, और ये कनेक्शन क्योंकि सोर्स से स्टैब्लिश है तो थोड़ा टाइम भी लेता है. और टाइम लेने के बाद देखिए ये क्वेरीज यहाँ पे आपके सामने आ जाती हैं इस तरह से. ठीक है, अब देखें, अगर आप डेटा को तो काफी सिस्टमैटिक लग रहा है. हाँ, एक दिक्कत अभी भी है कि ये कंबाइंड पॉपुलेशन जब हम कर चुके हैं तो हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है, राइट. सो इसे मैनेज करने के लिए वापस पावर क्वेरी एडिटर में मैं जा रहा हूँ, एंड गाइज इसे डिलीट नहीं किया जा सकता, ये बता दूं आपको मैं. अगर मैं डिलीट करने की कोशिश करूं तो भी नहीं होगा. ऐसा इसलिए कि कंबाइंड पॉपुलेशन के लिए सोर्स का काम कर रही है, बेसिकली ये रेफरेंस्ड है विद कंबाइंड पॉपुलेशन, तो डिलीट नहीं किया जा सकता. सो उस केस में यह है कि आप डिलीट ना करें, लेकिन इसका लोड यहाँ पे डिसेबल कर दें, तो ये बार बार लोडिंग में नहीं आएगा और रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा. तो मैंने इसका लोड डिसेबल कर दिया है, इटैलिक हो गया अब ये. और मैं जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई करता हूं, अब आपको यहाँ पे केवल कंबाइंड पॉपुलेशन दिखेगा, बाकी सब नहीं. ठीक है, तो इस तरह से डेटा को प्रिपेयर किया जाता है. और भी ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है इस डेटा को, मैं ये बता दूं. ठीक है, अभी क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, इसलिए मैंने काफी शॉर्ट इससे रखा है डिस्कशन को. हम लोग इसे और स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं, और मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक चार्ट बना के दिखाता हूँ. लेट्स से वी हैव पाई चार्ट हियर. सो आई कैन गो विद द कंट्री. सो लोकेशन को मैं लेता हूँ लीजेंड्स में, एंड पॉपुलेशन को वैल्यूज में. सो ये देखिए, तो ये कंट्री वाइज चार्ट बन के आ गया है, और सबसे नंबर वन अभी चाइना है गाइस. सो हम लोग काफी चेज कर रहे हैं उन्हें. वर्ल्ड शेयर का 21.13% चाइना का है, वेर एज इंडिया कंसिस्ट करता है 16.67, एंड वी आर अबाउट टू किल देम. हम बहुत जल्दी जो है अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं पॉपुलेशन के मामले में. तो सो ऐसा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डेटा को एनालाइज हम लोग करते रहते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक हम लोग इन्हें चेस कर लेंगे. चाइना पीछे होगा और हम लोग नंबर वन. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का शेयर आ रहा है. बेसिकली जो पाई चार्ट होता है शेयरिंग रिप्रेजेंट करने के लिए होता है. तो इस तरह से गाइज यहाँ पे डेटा को विजुअलाइज किया जाता है. इस डेटा को जैसे मैंने बताया और ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड और वेल मैनेज्ड किया जा सकता है. यही चीजें होती है जो यहाँ पे लर्न की जाती है. एज वेल एज हम लोग यहाँ पे डेटा व्यू अवेलेबल होता है हमारे पास. डेटा व्यू के अंदर हम लोग डेटा के रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होती है वो परफॉर्म करते हैं गाइज, और विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, सम मेजर कैलकुलेशंस. ये सब चीजें यहाँ पे लर्न की जाती हैं, और पावर बीआई के अंदर यही सब चीजें हैं, एडवांस ऑप्शंस हैं. मैं आपको इसी सैंपल डेटा के साथ, ये जो डेटा आपको मैंने अभी दिखाया है, जैसा मैंने बताया कि फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है वैसे, बट आपको एक डैशबोर्ड इसी से बना हुआ दिखाना चाहूंगा. एंड जस्ट लुक एट दिस, सेम डेटा के साथ ये प्रिपेयर्ड है, और माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पे बनाया गया है. तो एक बार इसे भी आप देख लें, सो दैट आपको पता चलेगा कि डेटा को कितना ज्यादा स्ट्रक्चर किया जा सकता है. So it's loading now. So you can see that the same data, और वो सेम डेटा देखिए मैंने किस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड किया है.
और स्ट्रक्चर करने के बाद इस तरह का यहाँ पे हमने डैशबोर्ड और पेज प्रिपेयर किया है. सो यू कैन सी दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन डिफरेंट है, फीमेल पॉपुलेशन अलग है, कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेंट्स है वो अलग है. सो वी हैव चार्ट्स इन डिफरेंट एरियाज. ये जो बड़े बॉल साइज देख रहे हो वहाँ बेसिकली पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इंडिया और चाइना, ठीक है, नंबर 1 and 2, यू कैन सी दैट. और कंट्रीज में छोटे बॉल्स है. एंड यहाँ पे भी देख लीजिए 0 to 4 का पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा है उनका पॉपुलेशन. यहाँ पे एशिया, अगर पैसिफिक्स की बात करें तो एशिया का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है ना. इफ आई क्लिक ऑन एशिया तो देखिए पूरे चार्ट चेंज हो जाते हैं. इस तरह के डायनेमिक डैशबोर्ड्स हम लोग बनाने यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है. सो ये चीजें हैं निहारिका, दीप, जो हम यहाँ पे लर्न करते हैं, ये चीजें हम लोग सीखते हैं. और ये एक बेसिकली स्ट्रक्चर्ड एक कोर्स होता है डेटा एनालिटिक्स का, जिसे सिस्टमैटिक रह के आप लोग अगर परफॉर्म करते हैं, सीखते हैं बेसिकली चीजों को, तो एक अच्छा स्कोप है फ्यूचर को लेके. एंड यही सब था जो मुझे आपके सामने इसमें रखना था. सो कोई क्वेरी है आप लोगों का तो आप मुझे पूछ सकते हैं गाइस. एनीवन हैव एनी क्वेरी? किसी का कोई सवाल? ओके. सो गाइस मेरी तरफ से डिस्कशन में यही था. एंड जो वेबिनार का जो मेजर फोकस ये था कि हम किसी तरह से समझे, बेसिकली कई लोगों के लिए टूल्स नए हैं, तो हम समझे कि इन टूल्स से क्या क्या अचीव किया जा सकता है. तो आई होप ये वेबिनार प्रोडक्टिव रहा होगा और हम लोग इससे रिलेट कर पाए होंगे. फिर भी आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हो सकते हैं गाइस, तो आप हमें डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है. कोई भी अगर क्वेरी होता है या इस कोर्स के बारे में आप एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके.